न्यूज़ स्टूडेंट का एक्सक्लूसिव लाइव ब्रॉडकास्ट में आप सभी का और एक बार स्वागत है। इस वक्त देख सकते हैं इस्तकबालिया प्रोग्राम और अल फैसल इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से एनुअल कल्चरल प्रोग्राम और एनुअल जो फंक्शन है और साथ ही साथ एनुअल स्पोर्ट्स का जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है उसमें मंत्री गुलाम रब्बानी को फेलिसिटेट किया जा रहा है। उसका सीधा सीधा तस्वीर आप देख सकते हैं। हमारे इस इलाके के मिनिस्टर जनाब गुलाम रब्बानी साहब का और इनके साथ साथ हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और हम जनाब गुलाम रसूल मोनी जो सहकारी सभापति हैं सभापति उत्तर दिनाजपुर के, उनको भी चाहेंगे कि वो स्टेज पे आए और साथ ही में हम हमारे स्कूल के डायरेक्टर सेक्रेटरी जनाब शोएब रहमान साहब को बुलाएंगे कि वो इस्तकबालिया शॉल और मोमेंटो देकर उनको एक्सेप्ट करें। तालियों से स्वागत करें जनाब गुलाम रसूल साहब मोनी का। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग कि वो आए हैं और हमारे इस प्रोग्राम को शुक्रिया अदा करने का मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। देखो कुछ स्टिल नहीं स्टिल। इसके बाद इस वक्त देख सकते हैं गुलाम रसूल मोनी जो कि उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के सहकारी सभाधिपति हैं। उसको स्कूल के मैनेजिंग कमेटी और डायरेक्टर की तरफ से इस्तकबाल किया जा रहा है। जनाब वजीर आलम TIC मोनी बेटा है। हाँ। अभी स्टेज में हम हमारे डायरेक्टर सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद शोएब रहमान साहब को दावत देंगे कि वो आए और कुछ बातें बोले। जनाब शोएब रहमान साहब। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকের এই নবম বার্ষিকী সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহোদয় এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় স্বনামধন্য প্রাণপুরুষ অত্র বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী এবং আজকের এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব গুলাম রব্বানী মহাশয় আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন। হায়দ্রাবাদ তেলেঙ্গানা থেকে আগত মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল উর্দু ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জনাব মোহাম্মদ ফরিয়াদ আলম মহাশয় আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন। আমাদের জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি জনাব গোলাম রসুল ওরফে মুনিদা আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন। বিশেষ বিশেষ অতিথি দিক দিগান্ত থেকে আগত অভিভাবক অভিভাবিকাগণ এবং এই অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা। আমি কি ভাষায় আপনাদের সম্বর্ধনা জানাবো, আমার কাছে কোনো ভাষা নাই। আমি অত্যন্ত আপ্লুত আনন্দিত যে আমাদের মাঝে আমরা এই অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় বড় মানুষদেরকে নিমন্ত্রণ করেছি যারা আমাদের নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন। আমি তাদেরকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি যে আপনারা আমাদেরকে সময় মতন সহযোগিতা করে আসছেন। আপনাদেরকে আমি সকলকে আমার পক্ষ থেকে রেইহান এডুকেশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পক্ষ থেকে এবং আল ফয়সাল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পক্ষ থেকে সকলকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অভিনন্দন জানাই। সুধী মণ্ডলী, আমি বেশি সময় নিব না। মন্ত্রী সাহেব রয়েছেন, খুবই ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন, তার ফাঁকে তিনি আমাদের সময় দিয়েছেন। আমি দুটি কথা বলবো। প্রায় আমাদের এই স্কুলের পথ চলা শুরু 2015 4 জানুয়ারি আমরা 8টি কক্ষ এবং 13 জন শিক্ষক এবং 100 জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে আমাদের স্কুলের পথ চলা শুরু হয়। এই পর্যন্ত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মাঝে প্রায় 42 খানা রুম, একটি ল্যাব, একটি ডাইনিং হল আমরা এই পর্যন্ত করতে পেরেছি। শুধু আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের সহযোগিতায় আমরা এই পর্যন্ত এগিয়ে গেছি। এই পর্যন্ত আমরা প্রায় 3টি পরপর ব্যাচ নিয়ে গেছি। যে ব্যাচে সর্বোচ্চ নাম্বার আমাদের এখানে প্রাপ্ত নাম্বার পেয়েছেন 94 সামথিং আমাদের একজন মেয়ে পেয়েছে। আমরা আশা করছি আপনাদের যদি সহযোগিতা রয়ে যায়, আপনাদের ভালোবাসা থাকে, আমাদের আস্থা থাকে, ইনশাআল্লাহ খুবই কম স্বল্পের মধ্যে আমি এই স্কুলকে আল ফয়সাল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলকে গল্পঘরের মাটিতে না প্রায় পশ্চিম বাংলার মধ্যে 1 নম্বর স্থান করে আনবো इंशाअल्लाह। हुक्मरान से मेरा गुजारिश है, कुछ मेहमान आए हुए हैं जो बाहर से बंगला नहीं समझते हैं। मैं बांग्ला से पढ़ा हुआ हूँ, उर्दू उतना मैं जानता भी नहीं हूँ। माजरत का हो, गलती हो
मैं आपसे हुक्मरान से गुजारिश करता हूँ, अगर इस स्कूल के साथ आप लोगों का ताउन रहा, हर मुसीबत के घड़ी में आप लोग खड़े रहे, जहाँ जहाँ जरूरत पड़े, पॉलिटिकली हो या ऑफिशियल फील्ड में हो, आप अगर ताउन करते रहे इस मैनेजमेंट के ऊपर, वादा करते हैं जैसे सेक्रेटरी के हिसाब से आपके लिए मैनेजमेंट साया बन के रह जाएंगे। इंशाअल्लाह आपसे हम हर हमेशा उम्मीद करेंगे कि आप लोग हम लोग हर मुसीबत में आप हम लोग का ताउन करें इंशाअल्लाह। और अपनी बात को लंबी ना करते हुए फिर से आखिर में हर मेहमानों ग्रामी का अतः दिल के गहराई से मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अभी दावत सुखन दूंगा हमारे मगरबी बंगाल के मिनिस्टर जनाब गुलाम रब्बानी साहब को। आप माइक पर आए, अपनी कुछ कीमती बात रखे। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुम्मत पर, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुम्मत पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। आप माइक पर जनाब गुलाम रब्बानी साहब। ধরো এখান থেকে ধরবা। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे आज काफ़ी हमको खुशी है यहाँ आने में, खासतौर से जब ये मतीउर रहमान साहब यहाँ बैठे हुए हैं और मिसबाहुर रहमान साहब और हसीबुर रहमान साहब, सईबुर रहमान साहब, और वहाँ जो है एक जो है आपका और मतीउर रहमान साहब और एक हैं जो वो उनको लेके कलकत्ता में भी जो है कई प्रोग्राम में कर चुका हूँ बुखारी यूनिवर्सिटी को लेकर के। मुझे खुशी इस बात की हुई कि आज हमारे दायित्व में इस प्रोग्राम में हम लोग तो यहीं के हैं, हम लोग को आना जो है यहाँ मामूली बात है, जब बुलाएंगे तब हाजिर हो जाएंगे। लेकिन किशनगंज से मुजाहिद साहब हमारे, हम लोग दोनों जो है बैचमेट है, क्लास फेलो हैं, और खासतौर से हम शुक्रगुजार हैं हमारे प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब का, जो डीन भी है और प्रोफेसर भी है। इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और ख़ासतौर से आप लोग सारे लोग जो आए हैं, टीचर्स खासतौर से, और सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मिस्टर थापा, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। वन डे आई टोल्ड यू perhaps that day you fell back from my speech, from my words। मैं एक दिन बोला था, क्या बोला था इसी स्कूल में आकर के कि किसी स्कूल को अगर अच्छा करना होता है तो वो हेडमास्टर या प्रिंसिपल अगर वो चाहे अच्छा करना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको जो है खराब कर पाए। और कोई हेडमास्टर कोई प्रिंसिपल अगर किसी इंस्टीट्यूट को खराब करना चाहे, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको अच्छा करे। तो आज उनकी ताकत का आजमाइश 9 साल में हो चुका है। उन्होंने इतना अच्छा किया है कि हम सारे ग्वालियर के लोगों के तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैनी मैनी थैंक्स टू मिस्टर थापा, बिकॉज योर डेडिकेशन, योर वर्क, ऑनेस्ट वर्क, टुडे वी गॉट द रिजल्ट। और मैं बोलता भी था कि आज हमारे फरियाद साहब जो डीन है, मैं जब छोटा था स्कूल में पढ़ता था, नॉर्दर्न हाई स्कूल में, तो उस दौर में जो है जाना पड़ता था 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चल करके, और चलते चलते जो नॉर्दर्न स्कूल पहुंचते थे लुंगी पहन के पहुंचते थे। क्या पहन करके? लुंगी का जमाना था। लेकिन आज इत्तेफाक की बात है, आज के मीटिंग আছে हम लोग का टाइम और अभी का टाइम में क्या फर्क आया है एजुकेशन में, क्या सब बच्चे जो यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। और उससे बड़ी बात है
उस दौर में जो है हमारे दौर में फीडर स्कूल नहीं होता था, छोटे छोटे स्कूल नहीं होते थे, और कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी हायर एजुकेशन सिस्टम व कोई भी तालीमी मयार उस वक्त तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक फीडर स्कूल अच्छा ना हो। ये फीडर स्कूल का बहुत बड़ा देन है कि आज हमारे सिस्टम को जो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है, ये स्कूल में घुसने के वक्त मैं रास्ता देख रहा था, रास्ता बड़ा खराब है, रास्ता हुआ नहीं है। मैं तो सोचा था कि रास्ता हो गया होगा शायद, हाँ होगा एकदम रास्ता। मैं अभी आज अनाउंसमेंट कर दिया को रास्ता हो जाएगा। एक आपके लाइट लग चुकी है, 2 तीसरा नंबर आप लोग एक अपॉर्चुनिटी खो दिए। जब मैं एमएबी में था, माइनॉरिटी मदरसा एजुकेशन में, तो उस वक्त जो है कम से कम 400-500 हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उद्योग से अनुप्रेरणा से 400-500 हॉस्टल हम लोग किए, 500 से ज्यादा हॉस्टल किए। कौन सब जगह में? ये जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हॉस्टल होता है उनको देते हैं 80 लाख, 90 लाख, 70 लाख, 65 लाख करके, वो हॉस्टल हो चुका है। लेकिन आप लोग अप्लाई नहीं कर पाए। अभी मत्तू रहमान साहब को बुला करके मैंने बोला कि आप लोग अप्लाई कीजिए, मैं देखूंगा उसको। तीसरी बात कि आज सबसे बड़ी चीज है, मैं बोलता था अक्सर इसी स्कूल में आकर के हमको हमारे बच्चे बच्चियां जो आज बैठे हुए हैं, हम एक टीचर होने के नाते हर टीचर ये ख्वाब देखता है कि हमारे बच्चे कम से कम तालीमी मैदान में इतना आगे चले जाए कि वो कम से कम एमेरिटस प्रोफेसर या फिर जो है चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंचे। आप लोग सोचे होंगे कि आज मंत्री साहब जो है कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, आईएएस की और बीसीएस की बात नहीं कर रहे हैं। यही आईएएस और बीसीएस की बात करते करते मैं खुशनसीब हूँ आज कि हमारे इलाके में आज किसी इस्लामपुर सब डिवीजन में, किसी जिला में पहला आईएएस यूपीएससी जो है हमारे ही घर से हुआ है। उनका बाप जो है 11 साल पहले इंतकाल कर गया था। उनकी माँ ने एक हाउस वाइफ ने अपने बच्चे को पढ़ा करके आज वो यूपीएससी किया। मंदर हुसैन अंजुम जो हमारा भांजा है, और साथ साथ वो खुशनसीब है और हम लोग भी खुशनसीब है कि वो होम कैडर हो चुका है, बंगाल में उसका पोस्टिंग हुआ है। आईएएस तो सभी करते हैं, लेकिन होम कैडर बहुत कम लोगों को मिलती है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और उनके साथ साथ हमारे गांव का एक लड़का वो आया था डी ग्रुप सी ग्रुप की सर्विस के लिए हमारे पास कि कहीं इंटरव्यू में बोल देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो हमने उस बच्चे को बोला था कि तुम्हें डी ग्रुप सी ग्रुप के लिए तुम कहाँ से पढ़े हो? तो मैंने वो कहा कि अंकल वो मेरा भतीजा है जामिया से। मैंने तुम्हारा बाप को तुम्हारा दादा ने कहाँ से पढ़ाया था? कि लोधन स्कूल से। तुम्हारा बाप क्या है आज? कि रिटायर्ड टीचर है। कौन स्कूल का? इस्लामपुर हाई स्कूल का। तुम्हारा दादा ने तुम्हारा बाप को लोधन स्कूल से पढ़ा करके तुम्हारा बाप जो है इस्लामपुर हाई स्कूल में है, और तुमको तुम्हारा बाप कहाँ से पढ़ाया है? उन्होंने कहा कि अंकल हमारे बाप जो है स्कॉलर से पढ़ा करके हमको जामिया से पढ़ाया। जामिया से पढ़ने के बाद डी सी ग्रुप में जाना चाहते हो? भागो यहाँ से। गुस्सा से जो है भतीजा है डॉक्टर ने कहा है मैं घर से निकाल दिया था। और उनको बोला था एक बार कि जब तक तुम बीसीएस नहीं निकालोगे, लेकिन नहीं पास करोगे, तब तक चेहरा नहीं दिखाओगे। चेहरा नहीं दिखाया बीसीएस रिटर्न, और जितना पैसा खर्च होगा हम करेंगे। वो निकला वहां से, 8 महीने में तैयारी किया, बीसीएस क्वालिफाई करके 25 या 26 रैंक ला करके वीडियो बन करके जो है कठुआ में पोस्टेड है, डिप्टी का आसिफ इकबाल नाम से। हमारा सवाल है आज, इसलिए मैं चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी की बात इसलिए कर रहा हूँ, आईएएस मिल चुका है, बीसीएस भी मिल चुका है, लेकिन आईएएस में भी जो है बहुत सारी चीजें हैं बच्चों को, खाली खासतौर से बच्चों को। एक हमारा एक आदमी 30 साल 12 साल के जब आईएएस पास करता है, 12 साल सर्विस होने के बाद डीएमडी एडीएम की पोस्टिंग होती है 12 या 13 साल में। 16 साल 17 साल के बाद जो सेक्रेटरी होता है, 25 साल 26 साल के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है,
और 30 साल 31 साल के बाद जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होता है। तो 30 साल की सर्विस बहुत लोगों को, 35 साल की सर्विस बहुत लोगों को नसीब नहीं होती, क्योंकि पढ़ते पढ़ते टाइम ही निकल जाता है, बाद में जो है उनका रिटायरमेंट का टाइम हो जाता है। इसलिए आज हमारे बच्चे यहाँ से, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से भी हो, आप गार्जियन हैं, हम लोग इलेक्शन आता है तो इलेक्शन क्या, इलेक्शन में खड़ा होने के लिए 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो है खर्च कर देते हैं। लेकिन मुझे एक हमारे दोस्त है आरिफ नाम से, हमारा वो भी बैचमेट है मस्जिदपुर का, वो जब भी आए हमारे पास खाली कहता था कि रब्बानी भाई एक टिकट हमको दे दीजिए, हम अपनी बार पंचायत से लड़ेंगे। तो मैंने बोला उनको कि नहीं, सब अगर हम लोग पंचायत इलेक्शन में पड़ जाए तो फिर भाई हमारे इलाके को सेवा कौन देगा, डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, आईएएस कौन बनेगा, बीसीएस कौन बनेगा, पायलट कौन बनेगा, ओसी कौन बनेगा, डीआरओ कौन बनेगा, डीआरओ कौन बनेगा। मैंने बोला उसको कि आपके बच्चे पढ़े लिखे पढ़ रहे हैं, आप अपने जो खर्च करेंगे इलेक्शन में हुआ इखराजात अपने बच्चे के पीछे लगा दीजिए, ताकि आपका बच्चा जब पढ़ लिख के आए वो मेडिकल क्वालिफाई कर ले। जब मेडिकल क्वालिफाई कर लिया तो मैं एक बुके लेकर के एक मिठाई का पैकेट लेके जब पहुंचा तो बोला कि ये आपकी बहुत बड़ी देन है कि आज हमारा बच्चा मेडिकल कर लिया। आपका बच्चा मेरा देन कैसे हो सकता है? तो बताया कि नहीं सर, आप अगर उस दिन हमको मना नहीं किए होते, हम अपने बच्चे के पीछे अगर नहीं लगते तो हमारा बच्चा जो है मेडिकल नहीं निकाल पाता। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, खासतौर से हमारे यहाँ सब हम लोग इलेक्शन में पूछ क्यों पढ़ते हैं, सब हम लोग जो है, और खासतौर से टीचर हजरात जो बैठे हुए हैं, आप लोगों का, मैं भी टीचर हूँ, जो डीलर है, जो मेंबर है, जो पढ़ा पाते हैं उनको पढ़ाना चाहिए। और पिछले लोगों को मैं ये कहूँगा, अरे भाई दूसरे के बच्चे के बारे में नहीं सोचिए, अपने ही बच्चे के बारे में सोच लीजिए। आप लोग अपने बच्चे को हम मेडिकल इंजीनियरिंग कराए, आईएएस कराएं, डब्ल्यूबीएस कराएं, ताकि अगर 200 टीचर हो यहाँ तो 200 बच्चे अगर हमारा मेडिकल कर ले तो कल हमको डॉक्टर जो कलकत्ता से भेजने की जरूरत ना पड़े होगा। इसलिए टीचरों से भी गुजारिश है, और खासतौर से छोटे छोटे बच्चियां जो आज हमारे सामने है फूलों की तरह, इन बच्चियों को हमारा एक जो रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से हो, अगर तुम तालीम ना लोगे, तुम पढ़े लिखे नहीं होगे, तो कल हमारा फ्यूचर जो है, एक तो टाइम था कि इट इज 17th सेंचुरी, उस दौर में जो है इंडियन एक लार्जेस्ट इंडियन इकोनॉमी हम लोग बोलते थे। कब? जहां जब मुगलों की राजधानी हुकूमत थी, पूरे दुनिया का सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी हमारा था। हाईएस्ट इकोनॉमी रहने के बाद भी हम आज कहीं नहीं है। कारण क्या है? जो रोमन का कॉलोनी था और जो ब्रिटिश का कॉलोनी इंडिया था, कई एम्पायर उस वक्त जो है पावरफुल होते थे। ऑटोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर, मुगल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, कई एम्पायर जो है बहुत पावरफुल था। लेकिन जो एम्पायर एजुकेशन को हथियार बनाया, वक्त के साथ चला, आज उसकी पोती जो है हर जगह बोला जा रहा है, हर जगह जो उसको पूछा है। मुगल नाम निशान तक आज नहीं है, ऑटोमन कहीं नहीं है, रोमन खत्म हो गया, लेकिन ब्रिटिश को जो है सब लोग मान रहे हैं। क्यों? ब्रिटिश को सब लोग फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने वक्त के साथ चला और एजुकेशन को हथियार बनाया। 1092 में हमारा ताजमहल बना होगा 1600 ईस्वी में। अगर 1092 में बना था आपका ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, अगर यहाँ कोई बड़ी यूनिवर्सिटी ताजमहल के जगह या लाल किला के जगह बन गया होता तो आज हमारे हालात इस तरह से नहीं होते, हिंदुस्तान जो है आगे चले जाता। इसलिए जरूरत है, तालीमी इदारा जब तक नहीं होगा, तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं होंगे। मैंने अलीगढ़ में देखा था, अलीगढ़ से जब जेएनयू किया, वहाँ स्टडी करने के लिए गए, कई माह 1 साल रहे। वहाँ रहने के बाद एहसास हुआ कि हमारा इलाका कहाँ है, हम कहाँ हैं।
तो आज हमारा एक जो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो अलीगढ़ हम लोगों को ये सिखाया नहीं है कि हम पीछे कहीं रह जाए, पीछे कहीं बैठ के रह जाए। आज अलीगढ़ के भी कुछ लोग यहाँ हैं, उनसे भी हमारा गुजारिश है कि वो लोग भी जो है आगे बढ़े अपने बच्चों को लेकर के, और साथ साथ इल्म और फन का जो है हमारे ग्वालियर में आए। और इनके अभी मिसबाहुर रहमान साहब बोल रहे थे, बकीउर रहमान साहब बोल रहे थे, अरे भाई ये तो आपके ग्वालियर पर आपको हमको साया की जरूरत नहीं है, हमारा साया अल्लाह है। लेकिन हम जहाँ भी तालीम की बुनियाद होगी वहाँ हमारी मौजूदगी होगा ही, ये आप लोग लिख लीजिए। यहाँ से नहीं, कलकत्ते से दिल्ली तक। लेकिन अफसोस होता है कि हमारे मिसबाहुर रहमान साहब बोले कि सर हम तो जानते ही नहीं थे। हजरत डायरेक्टर हैं आप और थापा जी आप प्रिंसिपल हैं, आप लोगों को भी जो है कान खुला रखना चाहिए, दिमाग खुला रखना चाहिए, ताकि कौन चीज कहाँ से मिल रही है। वो वक्त निकल गया, उस वक्त अगर आप लोग अप्लाई किए होते तो आप लोगों को भी जो है मिल जाता। फिर भी बकीउर रहमान साहब बुखारी यूनिवर्सिटी के लिए हमारे पास आए कि सर आप जो है थोड़ा आप उपयोग नहीं लेने से, स्टार्टिंग नहीं करने से नहीं बन पाएगी। हमारे दोस्त लोगों को पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, चंदा जो है अपने घर में पहले होनी चाहिए। मैंने पहले अपने दोस्त लोगों को बुलाया, जितने भी अलीगढ़ से थे, जेएनयू से थे, सबको लेके बैठा, एक बेहतरीन प्रोग्राम किया। प्रोग्राम करने के बाद माशाअल्लाह आज यूनिवर्सिटी जो है आगे चलने लगी, और तफसील से बताएंगे हमारा बकीउर रहमान साहब। उस प्रोग्राम करते वो बताएंगे, अपना ज्यादा बोलना जो है फिर तारीफ हो जाता है, अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, आज जो है ये अदारा छोटा स्कूल, आप जहाँ हमको बुलाएंगे वहाँ हम हाजिर हो जाएंगे। जो इमदाद लेना होगा हम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त है, क्योंकि मैं एक खुद टीचर हूँ। मैं जब मदरसे का एमएमई का मिनिस्टर था, MIC था, मिनिस्टर इंचार्ज था, मैंने पहले टीचरों का हेडमास्टर का काउंसलिंग कराया था। क्यों हेडमास्टर के काउंसलिंग? टीचर लोगों को शायद बुरा न लगे, हेडमास्टर लोगों को काउंसलिंग कराते, स्नेप संस्था को ला करके मदरसा माने हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, ये दिमाग से निकालने के मदरसे माने कि हमारा बच्चा बेकार हो गया, ये कंसेप्ट क्यों आएगा? हमने स्नेप संस्था को बुलाया, उनको बुलाने के बाद दीदी का हमारा मुख्यमंत्री का परमिशन से उन्होंने कहा कि तुम एजुकेशन में जो करना चाहते करो। किया, इसने संस्था को जब बुलाया तो उनका काउंसलिंग किया, इनोवेशन किया मैंने। इनोवेशन करने के बाद पहले हेडमास्टर लोगों का काउंसलिंग होगा, कौन करेगा? इसने संस्था करेगा, ऑर्गेनाइजेशन करेगा। हेडमास्टर लोग किसका करेगा? 100 हेडमास्टर को बुलाया, फिर वो 100 हेडमास्टर जो है एक शो करके स्कूल का टीचर्स को बुलाया, मदरसे का टीचर्स को बुलाया। बुलाने के बाद जो है टीचर्स का जब हो गया, तब जो है टीचर्स लोग जो है बच्चों का काउंसलिंग स्टार्ट किया कि बच्चे के अंदर जो एहसास कमतरी घुसा हुआ है वो कम से कम निकाल पाए। तो आज माशाअल्लाह हमारा मदरसा आज MAME मदरसे डिवीजन से आगे जा रहा है, इसलिए हम खुशनसीब हैं कि उस दफ्तर में 2 साल मौका मिला काम करने का। अब फिर वहाँ से हॉर्टिकल्चर आए, तो हॉर्टिकल्चर में भी जो है थोड़ा सा काम हो पाया, और अभी इन्वायरमेंट में है, और इन्वायरमेंट में भी जो है काम स्टार्ट होगा। और हमारे ग्वालियर में जो भी प्रॉब्लम होगा, हजरत आप बिला झिझक, अगर हम न भी मिले हमारे लोग यहाँ हाजिर है। आपका शमसुल साहब है, यहाँ निजामी साहब है, नसर साहब है, पवन है, हमारा प्रधान है, उसके बाद जो हमारा यहाँ अंगलीब है, सारे लोग आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन खिदमतगार हमारे मार साहब भी है, हेडमास्टर साहब भी है, खुर्शीद साहब, आपको लेने की जो है ख्वाहिश पैदा करना पड़ेगा। जब तक लेने की ख्वाहिश नहीं होगा देने वाला दे नहीं सकता है। और ये भी बात बोल रहे हैं, हम लोग कहते हैं ये चीज मिला नहीं, वो हुआ नहीं। देने वाले के पास कभी नहीं रहता, बस लेने वाला की कैपेसिटी होना चाहिए। लेने की कैपेसिटी अगर हम में नहीं होगी तो हम जिंदगी हमारी खत्म हो जाएगी, हम ले नहीं पाएंगे। और ज्यादा वक्त ना लेकर के आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, और खासतौर से हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, हमारे छोटे छोटे भाई हैं, मैं एक स्कूल का टीचर हूँ। मैं एक बात फिर बोलूँगा कि टीचर लोग जब भी क्लास में जाए, और हेडमास्टर साहब कहाँ चले गए? क्या प्रिंसिपल साहब? अच्छा,
प्रिंसिपल साहब, आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है। जिस दिन फर्स्ट डे डे 1 में मैं बोला था, पहले टीचरों का आपका काउंसलिंग होना चाहिए और टीचर कम से कम जो भी जिस क्लास में भी पढ़ाए 2 घंटा अगर घर में ना पढ़े, स्टडी ना करे। हम लोग खुद जो है, हमारा एक मकबूल हुसैन साहब एक टीचर होते थे, एक इरफान हबीब साहब टीचर, अभी वो हयात से है, हमारी हिस्ट्री के टीचर प्रोफेसर इरफान हबीब साहब से मैं एक रिक्वेस्ट किया कि सर आज मैं आ नहीं पाऊंगा, कल मैं आ नहीं पाऊंगा सर, हमको थोड़ा स्लीप प्लान कर दीजिए। तो मैंने हमको बताया कि रब्बानी यू नो फॉर यू पीपल ओनली आप स्टडी 4 आवर्स एट नाइट। 4 घंटा एक प्रोफेसर जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में उसको लोग जानते हैं, वो ये सब बोले, वो अल्फाज बोले कि हमको 4 घंटा स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद क्लास लेना पड़ता है। और जो ये कहता है कि सारी दुनिया की हिस्ट्री को अगर खत्म कर दिया तो 60% हिस्ट्री आप कैसे लिख देंगे, वो कह रहा है। और हमारा मकबूल हुसैन साहब एक इंग्लिश के प्रोफेसर थे, वो जब पढ़ाते थे तो कहते थे कि आई चैलेंज द होल वर्ल्ड। शेक्सपियर को जो है बहुत एक्सपर्ट था, वो पढ़ के जो है तब क्लास में आता था। और वो जब पढ़ाते थे तो पीछे जो है उस वक्त ये मोबाइल नहीं होता था, टैप रिकॉर्डर होता था, और उन लोगों का पढ़ाई का टाइमिंग होता था। वो अगर आ गया तो घंटा पड़ गया, अगर उसका लेक्चर खत्म हुआ तो घंटा पड़ गया। मेजरमेंट कर देखिए आप, स्टार्ट हुआ घंटा पड़ा, खत्म हुआ फिर घंटा पड़ा। इसका मतलब वो 4 घंटा ठीक पढ़ के आते मेजरमेंट के साथ। कौन कितना सेंटेंस हमको बोलना पड़ेगा, कौन सा वर्ड बोलना पड़ेगा ताकि हमारा कवरेज होगा, सारे चीजों का मेजरमेंट करके तब आता था। और हम लोग टीचर लोग कुछ हंस रहे हैं इधर हमारी बात सुन करके। हमारे जो टीचर पढ़ते नहीं हैं, क्लास में क्या करते हैं, वो जब रेस्ट उठाएंगे तो उठाने में 10 मिनट और सारा फोन उसी वक्त आ जाएगा। क्या आप चले जा रहे बात करके, और जब जाएंगे तो लग रहा है तो बीमार आदमी जा रहा है, हिलते डुलते जाएंगे क्लास में। क्योंकि मैं टीचर हूं इसलिए बोलने का मुझे पूरा इजाजत है। और जब क्लास में तो आप अटेंडेंस भूल रहे हैं या अटेंडेंस ले रहे हैं, 2 मिनट को अटेंडेंस लेना है, 10 मिनट वही लगा। अब टाइम बंदा कितना, 5 मिनट या 10 मिनट, और 10 मिनट में आप शुरू करते हैं हिंदुस्तान से खत्म करते हैं अमेरिका में जाकर। और बच्चे क्या सोचते हैं कि बच्चे बेवकूफ है। बच्चे बेवकूफ नहीं है, बच्चे आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। यही बच्चे जाके आपके खिलाफ जो है क्रिटिसाइज करता है। तो हमारे ये कहना है जो टीचर्स हैं, आप लोग जो है कम से कम स्टडी करके बच्चों के दिमाग में यह डालिए तो क्लास छोड़ के ना भागे। और हम लोग क्लास छोड़ते नहीं थे तो टीचर का, अपने कुछ टीचर ऐसे होते थे जब क्लास में आया तो पीछे से बहुत टीचर भाग गया। बहुत बहुत शुक्रिया, और ज्यादा वक्त न लेकर के, क्योंकि बच्चों को खाने का भी टाइम हो गया है और बहुत देर तक सुन रहे हैं आप लोग। हम फिर शुक्रिया अदा करते हैं मिसबाहुर रहमान साहब का, क्या नाम है, हसीबुर रहमान साहब का, सोहेबुर रहमान साहब का, और हमारा प्रिंसिपल थापा साहब का, और खासतौर से हमारे जो मेहमान आए हैं हैदराबाद से, उनका तो हम काफी हम शुक्रगुजार हैं कि वो हैदराबाद से आए एक सिर्फ इल्म के लिए। और कहावत था किसी हदीस में या कुरान पाक में आया है कि अगर जरूरत पड़े पढ़ने के लिए, इल्म लेने के लिए, चीन जाने के लिए, तो वो आज वो जो है साबित कर दिया, सबूत दे दिया है। इससे बड़ी बात नहीं। Thank you very much, sir. Sir, next week, sir. I'll call you. No, you go down. Yes, sir. तो सर ने हमें जो रब्बानी सर ने जो जितनी बातें बोली है, मैं एक लाइन में जवाब देना चाहूँगा। सर आपका हुक्म, सर आंखों पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे MLA साहब का। इनके लिए मैं बोलना चाहूँगा।